everyone, this is Mansi Devnani, your maths teacher. Today we are going to continue our lesson to shapes and angles. So take out your textbook, page number 28, shapes and towers. So look for triangles in the pictures given below. There are some pictures of bridge and towers. Can you see over there? क्या आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल का यूज ज्यादा किया हुआ है ब्रिजेस और टावर्स बनाने में? वाई इट इज सो? क्यों ट्राइंगल का ही यूज किया हुआ है, स्क्वायर या रेक्टेंगल यूज नहीं किया हुआ ये सब बनाने के लिए? क्योंकि ट्राइंगल एक स्ट्रॉन्ग पॉलीगॉन होता है. दैट इज वाई ब्रिजेस टावर्स आर मेड इन ट्राइंगल शेप सो दैट दे डू नॉट कोलैप्स. जब आप ट्राइंगल का शेप बनाओगे और ऊपर से आप उसको प्रेस करोगे तो वो ज्यादा दबेगा नहीं, वो कोलैप्स नहीं होगा. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू. Look around and find out more places where triangles are used. Now we will start angle and time. Angle and time. There are many times a day when the hands of a clock make a right angle. So here two girls are talking. One girl is asking, Zeenat, your watch does not have digits. How do you read time? तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वॉचेस होती है जिसमें 1, 2, 3 डिजिट्स नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम, हमको पता चल जाता है कि क्या टाइम हुआ है. So she says, I just see the angles. See, when the hands make a right angle, I know it is 9 o'clock. आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में 9 o'clock right angle किस तरह से बनाता है. So here there are many times in a day when the hands of a clock make a right angle. तो हमको बनाने हैं इसमें, ये मैंने 3 वॉचेस ड्रॉ करके रखी है जिसमें मैंने नंबर्स नहीं लिखे. तो अब इसमें हम लोग बनाएंगे एंगल्स जो राइट एंगल फॉर्म करते हो. हम ऐसा टाइम इसमें बनाएंगे. सो अगर मैं यहाँ पर बनाती हूँ ये एंगल, दिस इज राइट एंगल. कैन यू टेल मी नाउ व्हाट इज द टाइम? यस, हम लोग यहाँ पर ये डिजिट्स लगा के अब हम लोग टाइम बता सकते हैं कि इसका टाइम क्या हुआ है. यू कैन सी हियर 3:30. टाइम क्या हुआ है? 3:30. So this also makes a right angle. जिस तरह से 9 o'clock का राइट एंगल बना है उसी तरह से 3:30 का भी राइट एंगल बना है. Now if I am drawing here a right angle like this, तो can you tell me what is the time over here? क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? तो here 3 and 12. So this is also a right angle and the time is 3 o'clock. Understood? Now if I am making an angle over here, see 6:15. So this is also a right angle and the time is 6:15. Understood? Now we can make right angles with different times. Now page number 29, write what kind of angle is made by the hands at these times. Here in your textbook picture is given. तो आपको टाइम बताना है और साथ साथ में एंगल भी बताना है. So here I have made a clock like this to make you explain how this angle will this time will show what angle. So here is the time is 7:25 in your book. First angle is 7:25. Can you see here? क्या आप देख सकते हैं ये एंगल कौन सा बन रहा है? ये छोटा सा एंगल बन रहा है. It is a small angle less than 90 degree. Can you see here? So what is the time? You will write the time is 7:25 and it is less than right angle. In your textbook also you can see. So now next is time is 8:15. So I will set here 8:15. आपने देखा कि 8:15 मैंने ये सेट किया है तो ये एंगल बड़ा हो गया. यस, तो 8:15 is more than right angle. Now the third is 9:10. So I am setting the time over here 9:10. Again you can see कि ये एंगल
बड़ा हो गया है, so it is also more than right angle. Next is 9:25. See here, now I am setting the time 9:25. Here also the angle is bigger than a right angle. Now next is 10. So I am setting the time over here of 10. You can see here ये right angle से छोटा हुआ है, so it is less than a right angle. Understood now? With this activity I have explained you how to see the time and write the angles. Now next is draw the hands of the clock when they make an angle which is less than right angle. अब यहाँ पर हमने ये जो क्लॉक्स ड्रॉ किए थे इसमें क्या हो रहा था, राइट एंगल. अब हमको ऐसे टाइम सेट करना है, ऐसा टाइम ड्रॉ करना है जिसमें एंगल लेस देन राइट एंगल बनता हो. सो let me erase this and we will write a new time which shows the less than right angle. Now here I am writing the digits. Can you guess what time we can write here to make an acute angle? That means less than a right angle. So we can draw first 2 o'clock. Let's draw 2 o'clock. So you can see here कि ये एंगल छोटा बन रहा है. Yes, 2 o'clock इसमें छोटा acute angle बन रहा है. Next we can draw here 4:15. So here also the angle is less than right angle. And next we can draw 6:25. So here also the angle is less than right angle. So with this I have drawn such angles. You can draw as you would like. आप कोई दूसरा भी डिजिट्स इसमें यूज करके बट लेस देन राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. Let's start the exercise. Write how many degrees should be added to the angles given below to make a right angle. अब हमको ये वाले डिग्री को क्या प्लस करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल फाइंड होगा. हमको यूं 90 डिग्री करना है. सी दिस, ये आपको इतना ही दिया हुआ होगा, ये मैं और लगा रही हूँ, ऐड कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से आएगा. सो अगर हमको 90 डिग्री यहाँ पे लाना है तो हमको 35 माइनस करने पड़ेंगे, तभी हम लोग को फाइंड होगा, मिलेगा कि ये कैसे 90 डिग्री फॉर्म होगा. सो here if we will add 55 degree we will get here 90. वो आपको देख के करना है कि 90 कैसे आएगा. Now 90 में से 82 माइनस करोगे तो you will get 8. So your 8 degree. 74. तो 90 में से 74 you will minus, so you will get 16. Now 20. 90 में से 20 माइनस करोगे तो you will get 70. So here you will have to do some more examples. I will send it to you in PDF. Okay, now your practice time. Look at the shape and answer the following. The angle marked in dash color is the biggest angle. So here a shape is given. This is marked in your textbook, page number 18. It is marked in white color. These two angles are black and these are yellow. So you can look here which angle is the biggest. Here this one is drawn like this. So this angle is biggest. It is in black color. Which is the biggest angle? It is in black color. The angle which is in black color is the biggest.
Next is, are the here some figures are given in your textbook. See, I have drawn it here. Are the angles marked with yellow color? So now, first of all, let me tell you that a regular pentagon, here यहाँ पर जो आपका पिक्चर दिया हुआ है, that is little bit different. But a regular pentagon के सारे angles same होते हैं. So here, two angles of pentagon are given here. So yellow, it is marked in yellow. ये वाला यहाँ पर yellow है, ये यहाँ पर yellow है. तो जो इसका एंगल है वो इसका भी सेम ही होगा. क्यों? अगर हम लोग let us show me here by drawing a triangle. अगर हम यहाँ पर मैं एक छोटा ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ और एक यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, तो इन दोनों के जो एंगल्स का जो मेजर होगा वो सेम होगा. क्यों? क्योंकि साइज छोटा या बड़ा होने से शेप, ये जो शेप है वो छोटा बड़ा होने से इसके एंगल्स चेंज नहीं होते. ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि शेप छोटा है या बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस सेम है तो एंगल सेम रहेगा. मेन आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है. सिमिलरली योर, सो योर द आंसर विल बी यस, क्योंकि पेंटागन के दोनों जो एंगल्स है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है दोनों शेप में. नाउ एंगल विथ ग्रीन कलर, इसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्रीन कलर और यहाँ इस तरफ भी. सो यहाँ पर भी ऐसा है, ये छोटा शेप है और ये बड़ा शेप है, इसीलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको देखना है. डिस्टेंस सेम है सो एंगल्स सेम रहेंगे. हियर ऑल्सो ब्लू कलर में भी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम है इसीलिए एंगल्स सेम है. नाउ 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स. नीचे जो पिक्चर दिया गया है उसमें 4 डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं. उसमें भी ऐसा ही है, आप देखो कि 2 पेंटागन दिए हुए हैं, 2 ऑक्टागन दिए हुए हैं और 2 हेप्टागन दिए हुए हैं. सो जो एंगल पेंटागन में है आपको वही बड़े वाले फिगर में से सेम छोटे वाले फिगर में कॉपी डाउन करना है. यहाँ पर दिया हुआ है तो ऊपर वाला फिगर है जो उसको यहाँ पर आप मार्क करेंगे, क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है तो एंगल भी सेम होगा. अगर डिस्टेंस वेरी करता है तो ही एंगल वेरी करता है. छोटी लाइन होगी तो एंगल छोटा होगा, ऐसा नहीं होता है. अगर लाइन बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सेम है तो एंगल सेम रहेगा. सो दिस पेज 18, इट इज, I hope this is clear. Now on page number 19, how many different shapes can you make by changing the angle? ये 4 मैचस्टिक से बना हुआ एक शेप है, तो इसका है राइट एंगल सब जगह, लेकिन अगर हम एंगल चेंज कर देंगे तो शेप चेंज हो जाएगा. सो वी कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. 4 मैचस्टिक्स को लेकर मैंने ये शेप बनाया, तो इसका क्या है, ये एक्यूट एंगल बन गया. ये सारे हो गए, सॉरी यहाँ पर 2 एक्यूट बनेंगे एंड 2 ऑब्ट्यूज बनेंगे. तो शेप चेंज कब हुआ? जब एंगल्स चेंज हुए. एंगल्स चेंज करने के बाद आपको याद होगा कि रोहिणी और मोहिनी ने भी बनाया था, उनके क्या थे, एंगल्स चेंज थे, इसीलिए रोहिणी और मोहिनी के शेप्स जो थे वो मैच नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट वी कैन ड्रॉ हियर समथिंग लाइक दिस. हम लोग यही स्क्वायर, यही ऐसे ही थोड़ा कुछ चेंज करके यू बनाएंगे तो भी एंगल्स चेंज हो जाएंगे और शेप भी चेंज हो जाएगी. नाउ 8 मैचस्टिक्स को लेकर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पर भी 8 मैचस्टिक्स का यूज है, लेकिन मैंने 8 मैचस्टिक यूज करके कुछ अलग एंगल्स लेकर अलग शेप बनाया है. यहाँ पर एंगल्स इस शेप के एंगल्स से चेंज हो गए हैं. तो ये आपको, और आगे जो आपके दिए हुए हैं CDE, दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. दिस इज योर फन टाइम, so you don't have to do it in your notebook, just do it in your textbook. Now there is some matchstick puzzles. Make 8 triangles using 6 matchsticks. So how you will make 8 triangles? हम लोग तो जितनी मैचस्टिक लेते हैं उसका ही ट्रायंगल बनता है. So here you have to solve the puzzle. How you will make 8 triangles with 6 matchsticks. So now suppose I am taking your 1 matchstick, 2 and 3. Then if I am using here it 4, 5 and 6. तो मैंने 6 मैचस्टिक बनाई, तो हम देखेंगे इसमें हमारे ट्रायंगल्स कितने बने हैं. दिस इज 1
2 3 4 5 एंड 6 ट्राइंगल बन गए। अब आप गौर से देखोगे तो एक और ये पूरा ट्राइंगल है, दैट इज 7, और ये वाला पूरा है वो बनेगा 8। सो हमने 6 मैच स्टिक से 8 ट्राइंगल्स बनाए। नाउ सी हियर द नेक्स्ट इज टेक 8 मैच स्टिक्स एंड मेक अ फिश। ओके, अब हम लोग फिश का ड्राइंग करते हैं। 8 मैच स्टिक्स लेके हम लोग फिश की ड्राइंग करते हैं। ओके, अब ये 8 मैच स्टिक से मैंने फिश बना दी। मैं यहाँ पर एक आई ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको लगेगा कि ये फिश है। नाउ pick up any 3 matchstick and put them in such a way that fish now start swimming in the opposite direction। अब मैंने ये फिश बना दी। अब इसमें से 3 मैचस्टिक मुझे ऐसे ड्रॉ इस तरह से हटा के दूसरी जगह सेट करनी है ताकि ये जो इस तरफ फिश जा रही है वो अब इस तरफ जाने लगे। मुझे इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो लेट्स ड्रॉ अगेन अ फिश। ओके, ऐसी हमारी फिश थी। तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाली मैचस्टिक हटा के मैं ये वाली मैचस्टिक को यहां लगा दूंगी। अब मुझे फिश का डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट करना है तो मैं यहाँ पे एक डॉट कर देती हूँ। उसके बाद मैं ये, अब इसका मुंह नीचे है तो यहाँ पर ये वाली मैचस्टिक का कोई काम नहीं। इस वाली मैचस्टिक को हटा के मैं इसको यहां कर देती हूँ। नाउ ये वाली 3rd मैचस्टिक हटा के मैं इस मैचस्टिक को यहां कर देती हूँ। तो आपको दिखा कि अब फिश ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ थर्ड इज यूजिंग 10 matchsticks make this shape। let us make this shape। 10 matchsticks को लेकर हमको शेप बनानी है। This all is your fun time, so don't do it in your notebook, just do it in your textbook। जो मैं PDF सेंड करूंगी आपको वही आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, नाउ ये 10 मैचस्टिक्स का आपका ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अगेन मैं एक और फिगर ऐसा ही ड्रॉ करूंगी तब, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना है, सी एंड पुट देम इन सच अ, पिक 5 मैचस्टिक। 5 मैचस्टिक को उठा के हमको शेप बनाना है हाउस का। हाउस का शेप बनाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से ये मैचस्टिक मैं उठा देती हूँ और उसको लगा देती हूँ यहां पर। ओके, अब क्योंकि मुझे हाउस का शेप बनाना है, आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा हाउस का शेप तो वैसे ही दिख रहा है, तो इसका यहाँ पे ये मैचस्टिक का कोई काम नहीं है। उस मैचस्टिक को मैं यहां पर कर देती हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है कौन सी मुझे स्टिक उठानी है, दूसरी ये वाली मैचस्टिक उठा के मैं उसको यहां लगा दूंगी। अंडरस्टूड? और ये जो 2 आगे है उसको उठा के यहां से मैं इनको पीछे सेट कर दूंगी। तो ये बन गया आपका हाउस का शेप। समझ में आ गया आपको किस तरह से हाउस बन गया? ओके, नाउ सो योर पेज नंबर 18 and 19 are completed. Now take out page number 33, angles with yoga। रहमत is doing yoga। आपको दिख रहा है कि रहमत योगा कर रहा है, पिक्चर्स है उसमें। These are the pictures of different asanas he does every day। So you can see here angle दिख भी रहा है। So in the first angle you will write a right angle, क्योंकि वो इस तरह की पोजीशन में बैठा है। तो ये क्या है, राइट एंगल। नेक्स्ट इज, यहां पर 2 पोजीशंस दी हुई है नेक्स्ट, एक है इस तरफ और दूसरी है यूं। सो दोनों एंगल्स का क्या बन रहा है यहाँ पे, लेस देन राइट एंगल। थर्ड में है एक यूं बन रही है उसके आर्म्स से और उसके फीट से भी यूं बन रही है। तो आप बता सकते हो इसको फिगर को देख के ही कि ये मोर देन राइट एंगल है। नाउ
नेक्स्ट उसके पैरों से कैसा बन रहा है, यूं करके यूं. सो अगेन इट इज मोर देन राइट एंगल, और यूं करके जो यूं एंगल बन रहा है, देन अगेन इट इज मोर देन राइट एंगल. सो अब ये लेसन को मैंने इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको पता चल गया है कि कौन सा राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है, और कौन सा मोर देन राइट एंगल है. So now the next topic is the D game that I will show you in next session. Thank you.